Good morning, everyone. Am I audible to you? Yes, sir. Okay. So we'll start the chapter again using Python libraries. And in my previous class, I have taught you about different types of functions, max, min, etc., occ, hex. And plus, I have also taught you about the string function. Can you remind me what was the last function I have taught you? Join, I think, and split, I think. Last function was join and split. Sir, split. Split was the last function. Now today I will start with replace. Write the definition of replace. Replaces a word. Replaces a word or part of the string with another in the given string. In the given string. Now I'll start I'll share screen first for you, and then I'll start Python also. Python ideally. Okay. So in Python ideally I'll give the example. Screen is shared for you. Python is visible now. Yes, sir. While new. Then what I'm doing here, I'm just giving a simple example of Python. So you can write it here also, or you want to write somewhere here, you can directly write here. So suppose quota is an educational city. This is my string. Then I want to replace something here. So replace. So what I want to replace? Replace. Suppose I want to replace quota with suppose Delhi. So I'll write Delhi and press enter key. So instead of quota, now Delhi is an educational city. So that way you can also change the word in between. And करना है, edu करना है, city करना है, ठीक है? That way you can replace. Okay. So this was one more function which I have taught you today. Next, I am going to teach you some more functions. इस chapter के सारे function पहले clear कर दें फिर. Now we are going for the random module. Write it. Random module. Random module provides random number generators. It has many functions such as random, RANDOM, random. I'm writing here so that it's clear to you. Random in a small letter. Random. So right definition of it, it returns a random floating point numbers in the range 0 to 1. In the range 0 to 1. राघव 0 to 1 में कितने नंबर आएंगे? Yes, sir. Between 0 to 1, how many numbers will come?
Come on, say quick. Any of you? सर फ्लोटिंग पॉइंट है तो इन्फिनिटी हो जाएगा एक तरीके से. Infinite numbers. Okay. So any number between 0 and 1 is displayed, but that is infinite. So random is not defined, so I'll define random. See, I can write program here. Import random. Or you want to write in your editor, import random function नहीं बेटा, import पहले module random, enter, and then you write here random. Either you write with print or simply you write print here, it works. Random module has not allocable. Okay, wait, random dot random. Press enter. So what it is showing? 0.1708. So remember here, this random is the module name and this random is the function of that module. Okay. So any number between 0 and 1 it will show, and it will be, see the range here, 17 something to 42. So that's a quite big number. Next you write, is it clear to you? What you have to write? Yes, sir. Beta, import, simple sa hai, import, and then you start writing your program. Import, आप अपने स्क्रिप्ट मोड में भी आ सकते हैं. Import random, that's it. And after that you print it here. यहाँ पे print लिखना जरूरी है. Next is your rand int. Rand int, it returns a random integer n in the range a comma b. Both range limits are inclusive. Both range limits are inclusive. So अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक वेरिएबल भी कर सकते हैं, and then I write here random, and then I write here rand int, and then I write here 5,8. So the number is displayed between 5 and 8, 5, 6, 7, 8. आप इसको और कम कर दीजिए तो 6, 7, 8. ओके, अगर आप और 6 और 7 कर दीजिए तो only and 6 and 7 number is displayed. So I write it here print r, and I will show you the result here. So 2-3 times I will return, I run, and I will show you the result. Run. Okay. Now see the result. Give any name. So 6 has come, correct? Then again I'll run. 7 has come. Then again you run. It's not necessary that one time 6 and one time 7 will come. See, again 7 has come. So it will display only the number in the range 6 to 7. So for that purpose, you can use rand int. Write this program, then I'll go for the next. Next you write random dot uniform. जैसे random dot rand int लिखा था, uniform. Random dot uniform. It returns a random floating point number in the range a comma b. A comma b. तो जैसे यहाँ rand int लिखा है, यहाँ पर random dot uniform, instead of that uniform लिख सकते हैं, और ये floating point number आपको डिस्प्ले कराएगा between 6 and 7 including the range. So 6.34. Next time I'll run 6.77. Next time I'll run 6. So that way it will show. समझ में आ रहा है? Between 6 and 7, including 6 and 7. Got it? Are you getting my points? So different types Yes, of sir. random functions are Yes, there. sir.
Training you, and this is a part of syllabus, so I have to teach you. Next is your rand range. Rand range. Rand range. The rand range function displays the number from A to B, and also it has steps. For example, rand range. आप steps ignore भी कर सकते हैं. Rand range. Rand range and run this. It's not necessary you give steps. So 6 has come. तो अभी आपको पुराना जैसे ही दिखेगा जो मैंने rand int बताया था. Again you run. Again you run. I think last limit ये नहीं लेगा 6 to 7. So 7 वाला step शायद नहीं लेगा. Yes, sure. So it will not take 6. But what I will do, if I'll take here 6, 10. So 6 to 10, 6 to 9 you can say, and then step 2. Now see the result here. Run. Okay. 6 has come. Then again you run. 8 has come. तो दो का स्टेप होगा, मतलब 7 नहीं आएगा आपका. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रन. देन 8 हैज कम. इसमें कुछ पता नहीं कि कब क्या आ जाएगा. 8 हैज कम अगेन. रन. 6 भी आ सकता है दोबारा. दैट वे. अंडरस्टूड? सो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? रैंड रेंज, रैंड आईएनटी. रैंड रेंज में लास्ट वैल्यू नहीं इंक्लूड करेगा, and also you can give the steps. Clear है? मैंने Yes, आपको Yes, sir. 11th में कुछ लकी नंबर वगैरह बनाए थे, तो उस तरह का प्रोग्राम आप गेमिंग प्रोग्राम या कुछ भी यूज कर सकते हो. एक्चुअली रैंडम के बारे में जब ज्यादा डिटेल पढ़ते हैं तो ये रैंडम नंबर लेता क्या है, तो इसकी इंटरनल पूरी प्रोग्रामिंग होती है, और इसमें अकॉर्डिंग टू द जो आपके क्लॉक होता है उस पर भी कोडिंग की जाती है. सो अब एग्जैक्टली कोडिंग इनकी क्या है वो तो इंटरनल ऑफ फंक्शन पे जाके ही पता चलेगा. बट इट जनरेट्स अ रैंडम नंबर्स, एंड फॉर दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर गिवन, एंड इट कैन टेक एनी नंबर in the given range. Okay, so different type of functions are there and there are different types of values, but basic definition is it generates random numbers. Okay, अब इसमें कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, and I have to teach you this for your exam. Now you write first question, find the maximum and minimum value of R. Find the maximum and minimum value of R, and also find the possible outputs, and also find the possible output. अब मैं यहां लिख रहा हूं import random. ये 2 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, मगर 2 मार्क्स तो मिनिमम आएगा. देन आई एम राइटिंग हियर R इज इक्वल्स टू random dot rand range I am using. Okay, rand range I am using, and then I am writing here 2, 10 plus 10. Purposely I am doing. Then I am generating a loop for I in range 1, R colon print I END. सिंटैक्स क्या है? कॉमा इक्वल्स टू, या ओ नो सॉरी, END space comma is there or not?
End equals to inverted End equals to equals to quotes. This quotes. way. Yes, sir. Okay. So this is the syntax. Okay. And then you write complete answer. Here I am giving in remarks. One option is 1, 2, 3, 4, 5. Second option is 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Then next is your third one is 9, 10. Then third option is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. And fourth option is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So this type of question may come in your examination and you have to choose what is the possible output. First you have to write the minimum value. तो आंसर आप क्या लिखेंगे? बताइए मिनिमम वैल्यू जल्दी से. So minimum value R की या Yes, R yes, की yes. तो Written R minimum value of R is. You have 12. to write this way. Minimum value of R is say 12. 12 is the correct answer. And next is your maximum value. 20. Are you sure? So 19. 19 is the correct answer. Maximum value is. अब यही फर्क है बेटा. इफ अगर मैं लेता रैंड रेंज के बजाय रैंड आईएनटी तो उसमें 20 सही था. तो ध्यान से फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर is 19. Correct option is Third. correct option. 1 क्यों नहीं है? क्योंकि जो लूप है 1 से R मतलब मिनिमम ये 12 टाइम्स मींस 11 तक चलेगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 R तक है ना बेटा. तो 1 to 11 एटलीस्ट इट विल एग्जीक्यूट. तो अगर 1 to 11 कहीं होता तो करेक्ट आंसर होता पहला 1 to 5 है रॉन्ग आंसर. 1 to 10 रॉन्ग है. अब ये क्यों सही है? मैं कह रहा हूं मिनिमम है मगर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 to 18. मैक्सिमम 1 to 18 हो सकता है. तो 1 to 18 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ऑल्सो यू रिमेंबर द सीक्वेंस. यहाँ लूप कैसे चल रहा है उसका भी ध्यान रखना. अगर कोई स्टेप्स है प्लस माइनस तो ध्यान रखना. देन इट इज 2, 3, 4. ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि हमेशा आई 1 से ही चलेगा तो 2 से ये नहीं चल सकता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया. बताइए. Third. थर्ड करेक्ट है. Third. Third is the correct option. Correct option 3. Okay. This way. Is it clear to you? इसमें मैं कुछ और भी वेरिएशन करने वाला हूं. चलेगा? ये समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं. आगे सर. ओके. अब एक बार मैं रन कर देता हूं. रिमार्क तो दे ही दिया है तो प्रोग्राम रन करके आई विल शो इट टू यू हाउ इट वर्क्स. ओके. तो आप देखिए आपकी रेंज क्या आई? 1 to 17. दैट इज द करेक्ट आंसर. अगेन इफ यू वांट टू रन एक बार और रन करके देख लो. सो 1 to 15 अगेन करेक्ट आंसर. अगेन यू रन यू सी 1 to 15 आ सकता है कोई दिक्कत नहीं. रन अगेन द 1 to 16 अगेन यू रन यू सी द आउटपुट. ओके. तो ये रिपीट 1 to 15 आ सकता है क्योंकि वो जो रैंडम जनरेट कर रहा है वही आएगा. सो बात समझ में आ गई अच्छी तरह. Please note down this or take the screenshot, whatever you want. ठीक है. So next out program I am going to take find the output. अब देखो मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ. बुक में ये दिया है नहीं दिया मुझे नहीं पता. सर Here I have जैसे इसी में अगर अपन रैंड रेंज के अंदर एक कोई स्टेप डालते हैं जैसे कि 2 तो वो सिर्फ
2 4 हाँ 6 हाँ 8 ऐसे ही वाले टर्म्स लेगा। यस यस यस, आप अपने हिसाब से उसको चेंज। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू रैंडम डॉट rand int. Okay, I am taking here instead of that I am taking here 1,5. Okay, and then here I am taking x, and then here I am changing these values. Okay, and okay, then here I am changing some values level. Okay, now what is the maximum value of x and r, and what is the minimum value of x and r? Maximum of x will be 5. Yes, sir. 5. And x is, x बताओ पहले, So minimum 1 minimum is 1 and maximum is and 19 and x is 5. 5. Okay, now what is the correct option? You say quickly. ऑप्शन और ऑप्शंस भी पूछ सकते हैं, ऑप्शंस या ऑप्शन पूछ सकते हैं, ये टेंशन मत लेना कि एक ही आएगा, 2 3 भी आंसर आ सकते हैं। तो 1 2 3 पॉसिबल है, 1 2 3 1 तो बिल्कुल नहीं है, सेकंड पॉसिबल हो सकता है, Yes sir. सेकंड इज पॉसिबल, Third ऑल is ऑफ यू, also possible. Second, third, and fourth. Fourth. थर्ड इज पॉसिबल, Yes, sir. थर्ड एक्स से चल रहा है तो एक्स कैन बी 1 to 5 कहीं पे भी हो सकता है एक्स, सो 3 सर से तीनों करेक्ट हैं, 2 3 और 4 तीन ऑप्शन। ठीक है, तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड, एंड देन नेक्स्ट इज योर 2, यस 2 से भी हो सकता है, अप टू 15 बिल्कुल पॉसिबल है, सो 2, सो फॉर योर कन्वीनियंस आई विल रन द प्रोग्राम एंड शो इट टू यू। सर उधर x के सिंटैक्स में एरर है, वहां पे डॉट की जगह कॉमा लगा दिया शायद। हाँ कोई बात नहीं, इसको चेक कर लेते हैं बेटा, सो रन इट, रन, ओके, so when I run this program you see the result, एक बार इसको बंद करो फिर बार बार मिलती है, run this program and you see the result, so result has come 2 3 करेक्ट है, 14 तक शायद अपना ऑप्शन भी है नहीं, हाँ है 14 से ज्यादा तक है, कोई बात नहीं, then again I'll run this program and see 3 से 17 तक करेक्ट है, then again you run this program 1 से लेके 14 तक पॉसिबल है, हम लोगों ने 11 तक दिया, अगेन यू रन एंड सी 2 से 17 तक, अगेन यू रन एंड सी, सो दैट वे यू आर फाइंडिंग दैट एग्जैक्टली हमारा एक आउटपुट भी इसमें बच गया 2 3 4 5 6 7 13 14, करेक्ट है। सो वंस द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू, यू कैन फाइंड आउट एनी आउटपुट एनी रिजल्ट। मैं टाइम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में जो सैंपल पेपर्स आए हैं वो उसमें ये रैंडम के आउटपुट दिए हुए थे, so you should know. Now one more output I am going to take it here, and that I am taking here different, ये क्लियर हो गया, आपने उतार लिया सारे ऑप्शंस के साथ, आंसर्स sir. के साथ, ओके, गिव रीजंस भी आता है, तो गिव रीजन में यही आपको लिखना है, बिकॉज द मिनिमम वैल्यू इज दिस एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, सो दैट द लूप विल जनरेट फ्रॉम दिस टू दिस, है ना, I is generating from x, so x will have initial value, minimum value as 1 and the maximum value as 5, यही सब लिखना है, जो पूरी कहानी लिखनी है वो यही लिखना है। हमारे एक्चुअली एग्जामिनर जो चेक करता है वो मैक्सिमम, मिनिमम एंड करेक्ट ऑप्शन, बाकी जो आप लिखते हैं वो अच्छा लिखना, सही लिखना। We'll come to the next program. So I will take one list based program here for this. So x is equals to, I will take, or simply you take a for array is equals to square bracket 4 10 15 9 17, anything you take, okay, and then you take here, suppose r is equals to random dot
rand int ले लेते हैं, rand int suppose I'll take 4. Now what is the result here? इसमें confusion मत create करना. अगर हम लेते हैं rand int 4, what is the result? Say quickly. If I'll take rand int 2, पहले मैं इतना प्रिंट करके आपको दिखाऊं, आपकी कंफ्यूजन दूर करूं पहले. ये भी आएगा रिजल्ट. क्या रिजल्ट आएगा? से रन 0 से 2 शायद 0 से स्टार्ट करेगा, एंड 2 तक लेगा। मिनिमम वैल्यू 0 आएगी. श्योर है? क्या कह रहा है? रैंड आईएनटी मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट. अरे इसमें बी चाहिए, बी चाहिए, बिना उसके नहीं चलेगा. रैंड रेंज देखें, एक कोई फंक्शन होता था इसमें आ जाता था रैंड रेंज. वेट रन ओके. रैंड रेंज रैंड आईएनटी रिक्वायर्स द सेकंड आर्गुमेंट. सो रैंड रेंज 1 आ गया. ओके, रन अगेन 1 आ गया, रन अगेन 1 आया, रन अगेन, रन अगेन 0 आया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रैंड रेंज की डेफिनेशन क्या थी बताइए जल्दी से, कि फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वैल्यू इनिशियल लेता टू था या नहीं? फाइनल एंड फाइनल इंक्लूड नहीं होती। ओके, सो सेम वे यहाँ पर तो मैंने रैंड रेंज ले लिया और इंस्टेड ऑफ 2 मैंने लिया यहाँ पर सपोज 5 लिया. ओके, समझ में आया? देन मैंने प्रिंट किया फॉर आई इन रेंज, रेंज r कॉमा 5. ओके, एंड मैंने यहां पर प्रिंट a ऑफ i किया. So you write first the same question, what is the minimum maximum range and what is the possible outputs? Yeah, this is the question for you. एंड वेंड कर लेना, नहीं करना तो मत करना. ओके, सो द ट्रिपल कोट्स फॉर आई इन रेंज r, 5 कोलन. ठीक है, सो ऑप्शन दे रहा हूं 1, 4, 10, 15. Next option is 10, 15, 9. Third option is 15, 9, 17. And fourth option है 4, 15, 9. Which is the correct option and why? ये पूछते थर्ड ऑप्शन। हाँ जी, Sir, third option is correct and minimum value is 0, maximum is 4. are you sure? Yes. This is 0, 1, 2, 3, 4. Sir, not maximum and minimum value of R. ध्यान से सर बेटा. आर की मिनिमम 0 और आर की मैक्सिमम तो 4 होगी एंड हाँ sir, ऑप्शन थर्ड तो और third option is the third correct है. आंसर. सेकंड नहीं हो सकता. Yes sir. नो No, सर sir. वो अपन ने लूप 5 तक तो चलाया 5 तो वो तक किया 17 तो जो लेगा ही सही। लिस्ट में 4 पे Okay. इंडेक्स 4 पे जो ऑब्जेक्ट है वो तो Okay. एंड में आएगा तो 17. बिल्कुल रीजन बिल्कुल करेक्ट है. सो द करेक्ट आंसर इज 15, 9 एंड 17. करेक्ट है. ओके, यस सर। ओके. सो अब इसी में मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं और इसको आप करने की कोशिश करना. मुझे याद तो नहीं आ रहा है, शायद कोई बुक में हो तो मैं एक बार देख लूं. आपको बुक से कोई क्वेश्चन मिल जाए तो मैं 1-2 क्वेश्चन दे दूं जल्दी से, क्योंकि मेरे पास 6 मिनट से भी कम है और हाफ एन आवर से ज्यादा सर क्लास. एक डाउट, हाँ जी, सर डाउट पूछना था. पूछो 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 पूछो. सर पूछो. जैसे मैंने वो स्ट्रिंग मॉड्यूल का प्रोग्राम खोला था
तो हाँ। उसमें वो लोअर केस और अपर केस और डिजिट्स के लिए वो दे रखा था सर, तो वो भी एक प्रोग्राम ही लिखा हुआ है। तो जैसे अगर मेरे को सिर्फ लोअर केस लेटर्स इंपोर्ट करना है, तो मैं उसके हाँ, लिए एक अलग से प्रोग्राम बना के लाइब्रेरी में डाल दूंगा, तो फिर मैं उससे डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ ना स्ट्रिंग को इंपोर्ट करने की जगह। मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। सर जैसे आप अभी फाइल पे क्लिक कीजिए। फाइल प्रोग्राम पे। हाँ। न्यू और फाइल। अब इसमें ये, नहीं सर न्यू नहीं, ये मॉड्यूल ब्राउजर, ऑल्ट प्लस। हाँ जी बोलो, इसमें क्या करना है? सर फाइल में मॉड्यूल ब्राउजर। फाइल में मॉड्यूल ब्राउजर। ओके। हाँ सर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। हाँ सर मैंने स्ट्रिंग सर्च किया था तो वो स्ट्रिंग का पूरा प्रोग्राम आ गया था उसमें, लोअर केस अपर केस डिजिट्स वो सब अरे वो का ठीक खुल है, गया था। प्रोसेसिंग पार्ट है ना वो, आप देख लेना यार। आप अपने एडिटर को कितना अच्छा यूज करते हो वो आपके ऊपर है ना? तो दैट्स अप टू यू, है ना? अगर अच्छी बात है, अगर आप कुछ और एक्सप्लोर कर रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस, आई सर मैं अप्रिशिएट। वही पूछ रहा था कि अगर मैं उसमें जो जैसे डिजिट्स अपर केस लोअर केस अलग अलग थे, तो अगर मैं जैसे सिर्फ मैं एक लोअर केस को इंपोर्ट करने का अलग से प्रोग्राम बना दूं, तो फिर बेटा मैं उसमें जो स्ट्रिंग की जो जगह फीचर्स अपने दिए हुए प्रोग्राम हैं, को ले वेट सकता हूँ। वेट वेट, उसमें जो भी फीचर्स दिए हुए हैं आप उन्हीं को यूज करेंगे। मॉड्यूल ब्राउजर है, अब इसमें कौन सा मॉड्यूल है मुझे नहीं पता, तो उस पे आप क्लिक या करके तो देखेंगे तो जो उसकी कोडिंग ओपन होगी। मॉड्यूल में मिल जाएगा शायद। हाँ जी। सर फाइल में ओपन मॉड्यूल। सर वो तो शायद उसी के मतलब पीसी में होगा ना, हाँ, मतलब उसने ऐसा बना कुछ रखा हाँ होगा इन्होंने सर उसमें लिखा अब हुआ कोड। इसमें था, स्ट्रिंग, सपोज यहाँ स्ट्रिंग लिखा, ओके स्ट्रिंग है, तो इसके जो मॉड्यूल्स हैं ना बेटा, वो प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स शो कर रहा है कि इसके कौन कौन से हाँ मॉड्यूल है, उनकी कोडिंग क्या है, कैसे प्रोग्रामिंग की है। तो आप उसको क्यों छेड़ रहे हो? आप अपने लॉजिक्स बनाओ। सर नहीं उसको नहीं छेड़ना चाह रहा मैं, अगर इनमें से एक का अलग प्रोग्राम बना के मैं फिर उसको खुद यूज कर सकता हूँ आप इसमें लाइब्रेरी में इंस्टॉल इसको, करने। इसकी कोडिंग को कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो, ठीक अच्छा सर, है ओके ना? सर। और कुछ? मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम, जो आपने ये कहा था वो मॉड्यूल नहीं था, ओपन मॉड्यूल में करके यहाँ पे सर्च करके आप उसके कोडिंग को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और कुछ पूछना है? क्लियर क्लियर हो गया ये डाउट, लवेश? यस सर। ओके। यस सर। बस बस जल्दी से मुझे क्लास एक होमवर्क ले लो। मुझे एक क्वेश्चन बुक में दिखा है, बाकी तो मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है, तो वो लिख लो ताकि आपको पता चले कि एक क्वेश्चन बुक से भी करा दिया। लिखो जल्दी से, इंपोर्ट रैंडम, इंपोर्ट रैंडम, और यहाँ पर उन्होंने ए की जगह ए आर यूज किया है। ए आर इक्वल्स टू, जो वैल्यू दी है वही लिखना। ए आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में 20, 20, 30, 40, 50, 60, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। 20, 30, 40, 50, 60, 70। देन यहाँ पे उन्होंने लिखा है फ्रॉम, फ्रॉम बुक का ये क्वेश्चन है इसलिए फ्रॉम लिख रहा हूँ। फ्रॉम रैंडम डॉट रैंड आई एन टी, रैंडम डॉट रैंड आई एन टी, रैंड आई एन टी 1,3, 1,3, देन 2 लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में। 2 फ्रॉम के बाद यहाँ पे इन्होंने 2 लिखा है। 2 इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड आई एन टी, रैंडम डॉट रैंड आई एन टी 2,4, 2,4, 1,3 की जगह 2,4। फिर नीचे लूप चलाया है, नीचे इन्होंने लूप चलाया है। मैंने आई यूज किया, इन्होंने के यूज किया। फॉर के इन रेंज, फॉर के इन रेंज फ्रॉम, फ्रॉम और कॉमा, ये 5 की जगह पे इन्होंने लिखा है 2 + 1, 2 + 1, ठीक है? फिर उसके बाद कोलन एंड देन प्रिंट, प्रिंट यहाँ पे लिखा है इन्होंने ARK, और एंड के साथ स्पेस नहीं देके हैश यूज किया है, हैश। एंड द ऑप्शंस आर, नाउ यू राइट ऑप्शंस। नंबर 1 ऑप्शन इज
10 hash 10 hash 20 sorry 40 10 hash 40 hash 70. Second option is 30 40 50 hash लिख लेना. Third option is 50 60 70. Fourth option is 40 50 70. That's all today. We'll meet in the next class. Till then, goodbye. If you have doubt, I'll solve your doubt in the next class. Take care. Bye.